is formation of twins. In previous video, we discussed that how the zygote is formed. So zygote is formed by the fusion between the male germ cell and the female germ cell. That is the sperms and the egg cell. Okay, so sperm releases its nucleus into the egg cell, and that is the cell with double nucleus, which is called fertilized egg, that is zygote. We also discussed that how this zygote divides to form embryo. Okay, it divides by mitosis, then one cell divide to form two cells further divide to form four cells. In this way, the 16 cell stage embryo is called morula. Okay, that we discussed. And this embryo is then get implant into the inner wall of uterus. Now children, what happens if during the development, if this embryo splits into two pieces? Okay, but what the condition is there for identical twins? First of all, we are talking about the identical twins. Okay, identical twins matlab kya? Who looks similar. Okay, who looks similar, but they have slight differences in their DNA, of course, right? और दूसरी चीज आइडेंटिकल ट्विंस की ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस या तो दोनों गर्ल्स होंगे या तो बॉयज. आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा कभी नहीं होगा कि एक गर्ल है और एक बॉय है, ये पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? सुनो अभी. बिकॉज द आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल जाइगोट. एक ही जाइगोट से बनेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, this is the egg cell, okay, who have the 6 chromosome X and X, and say for example it getting fertilized with the sperm, okay, having the condition of chromosome X and X. sperm में भी कौन सी condition है chromosome की? X and X condition है, right? अब actually हम यहाँ पे मतलब double X नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये germ cells है, so that will have only one set of chromosome, right? So we should not write like this. It should be like this: the egg cell, okay, have the chromosome X, okay, and for example the sperm which have again the chromosome X. Now when these two fuses, there will be a zygote with a chromosomal condition X and X. मतलब ये जो zygote बना है, एक क्रोमोसोम का सेट आया फीमेल से, एक क्रोमोसोम का सेट आया मेल एक सेल से, बराबर. तो इससे क्या बन गया? ये बन गया आपका सिचुएशन, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स से थे. मतलब ये जो जाइगोट डेवलप हो रहा है ये किसका है? फीमेल का है, फीमेल का है, बराबर. अब क्या होगा इफ दिस embryo splits into two pieces? Now there are certain conditions because of that it can split. Say for example, if the embryo is growing like this, say for example here is the wall of uterus, okay, and here is the embryo growing. Sometime what happens, the cell grows in the downside direction more, okay, the germ cells are growing more in the downside direction, and due to the heaviness, sometime it breaks into the pieces like this. It breaks out, and once it breaks out, the broken part again get attached to the wall of uterus like this. Again the broken part get attached to the inner wall of uterus. So this embryo will develop separately and this embryo will develop separately, and of course both the embryos have different placenta, जो डिस्क लाइक पार्ट मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंड डिफरेंट अम्बिलिकल कॉर्ड. दोनों के प्लेसेंटा भी अलग होंगे, दोनों के अम्बिलिकल कॉर्ड्स भी अलग होंगे, बराबर. और दोनों भी या तो गर्ल होंगे या तो बॉयज, बिकॉज दिस टू different embryos have split out from the single embryo which was developed from the single zygote. एक ही एक सेल और एक ही स्पर्म, उनके ही फ्यूजन से बना हुआ जाइगोट और उसी का स्प्लिटिंग हुआ. दैट्स व्हाई ये जो होंगे ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे. अब अगर ये 3 पीसेस में अगर ब्रेक हो गया तो उससे क्या बनेंगे? 3 आइडेंटिकल वहां पर इंडिविजुअल्स बनेंगे.
अगर 4 में कन्वर्ट हुआ, 4 पीसेस में ब्रेक हुआ, तो 4 मैक्सिमम आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बन सकते हैं इन ह्यूमन, राइट? डिपेंड करता है, बट हम बेसिकली ट्विंस की ही बात करते हैं, राइट? अब आगे देखो. Now here you can see in this picture clearly that how these twins will grow. This both will have the separate placenta and will have the separate umbilical cord. Okay. Now when these twins are formed, if the embryo splits out, if it not splits out, then only single individual will develop inside the uterus. Now sometime what happens in the female reproductive system, okay, in the female reproductive system, sometime what happens due to the hormonal imbalance, both the ovaries releases egg, both the ovaries releases their corresponding eggs. ये भी ओवर रिलीज कर देता है एग और ये भी ओवर रिलीज कर देता है एग. अब स्पर्म्स जो है वो कितने हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है भाई, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है, बराबर. अभी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कोशिश करेंगे उसमें से कोई तो भी एक स्पर्म दोनों एक को, मतलब इस साइड में एक स्पर्म और इस साइड में एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा. अब इस केस में क्या होगा देखो. इन सच ए सिचुएशन this side egg get fertilized with one of the sperm and this side egg get fertilized with another sperm. Say for example, this sperm is carrying the X chromosome and this sperm is carrying Y chromosome. So this zygote will have the situation like X and X. This will be the girl child. And here is the situation of the zygote having the XY type of chromosome and this will be the boy. ओके अब ये जो दो ट्विंस बन रहे हैं ये किस टाइप के ट्विंस है? दे आर नॉन आइडेंटिकल. दे आर नॉन आइडेंटिकल. व्हाई? बिकॉज दिस बोथ द इंडिविजुअल्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम two different zygote and two different zygote have the two different DNA which shows the two different features of that individuals. समझो इस साइड का जो जाइगोट है इसमें समझो ब्लू आई के लिए जीन आ चुका है क्रोमोसोम से, और समझो ये वाला जाइगोट है इसमें ब्लैक आई के लिए समझो जीन आ चुका है, ब्लैक आईज के लिए, यहाँ पे ब्लू आईज के लिए. तो ये जो ट्विंस बन रहे हैं ना इसमें हो सकता है एक के आईज जो है ब्लू हो, एक के आईज जो है ब्लैक हो, और ये सिमिलर भी नहीं दिखेंगे. ये क्यों सिमिलर नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये अलग अलग जाइगोट से डेवलप हुए हैं, अलग अलग जाइगोट से. दो अलग अलग एग सेल्स, दो अलग अलग एग सेल्स को दो अलग अलग स्पर्म्स ने फ्यूज किया, इसलिए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बने. अब ये वाले केस में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? या तो ये दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, या तो ये दोनों बॉयज हो सकते हैं, ओके, या तो एक गर्ल हो सकता है और एक बॉय. कुछ भी सिचुएशन हो सकती है. इट डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ द स्पर्म इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड. अगर एक्स टाइप का स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है तो गर्ल चाइल्ड वहां पे डेवलप होता है, और अगर वाई टाइप का स्पर्म अगर फ्यूज्ड हो रहा है तो वहां पर बॉय चाइल्ड होता है, बराबर. अब ऐसा नहीं होता है वाई 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 कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीमेल में एक ही सिचुएशन है एक्स एंड एक्स, और मेल में दो सिचुएशन है एक्स एंड वाई, बराबर. तो मेल के दो टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक्स टाइप वाला स्पर्म और वाई टाइप वाला स्पर्म. बट फीमेल में एक ही टाइप के एग बनेंगे, एक्स और एक्स. तो सिचुएशन ऐसे ही होगी, आइदर दिस वाई गेट फ्यूज विद द एक्स और एक्स गेट फ्यूज विद द एक्स, बराबर. तो बॉय चाइल्ड डेवलप होगा या फिर गर्ल चाइल्ड. दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकते हैं, या फिर एक बॉय और एक गर्ल, और ये होंगे नॉन आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं दिखेंगे, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट जाइगोट. अब कभी कभी कॉन्जॉइंट ट्विंस भी होते हैं, मतलब कैसे? ऐसे कि दो हेड होंगे, बराबर, और एक ही बॉडी होंगी. ये एबनॉर्मल सिचुएशन है. कभी कभी ऐसे होता है कि एक ही हेड होता है, एक ही हेड होगा और दो अलग अलग बॉडीज, बराबर.
तो ये भी एबनॉर्मल सिचुएशन है। और ऐसे जो मतलब एबनॉर्मल चाइल्ड जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन बेसिकली कम होता है। इट डिपेंड, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब बहुत सारे उसमें मतलब चेंजेस भी आए, बट इट इज सेड दैट दे हैव द लेस लाइफ स्पैन एंड ऑफ कोर्स दे विल नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। ओके, चेहरा भी उनका अलग दिखता है, मतलब देखने में थोड़ा सा ऑड ही लगेगा ना कि टू हेडेड बॉडी, डिफरेंट ही लगता है। अब ये मतलब लाइफ इनका नॉर्मल चलते रहता है बराबर। इनकी बॉडी का कैसे है, डबल ब्रेन होगा, राइट, बट फंक्शनिंग नॉर्मल ही होगी बॉडी की। दो ब्रेन काम करेंगे लेकिन वहां पे फंक्शनिंग एकदम कंट्रोल सिचुएशन में होगा, बराबर। तो ये बनते कैसे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल यही सिचुएशन ले लो हमारी स्टार्टिंग वाली, कि एक सिंगल जाइगोट है, बराबर, उसके मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं, ग्रो हो रहा है ये एम्ब्रियो। अब ग्रो होते होते इसका कुछ पार्ट डिटैच हो गया, टूट गया, स्प्लिट हो गया। और स्प्लिट होते होते ये पूरा का पूरा स्प्लिट नहीं हुआ, ये स्प्लिट होकर उसी के साइड में ऐसे अटैच हो गया, यूटेराइन वॉल को ऐसे अटैच हो गया। कंप्लीट स्प्लिटिंग नहीं हुआ, कंप्लीट स्प्लिटिंग नहीं हुआ। तो ऐसे इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग के इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग एम्ब्रियो से जो दो इंडिविजुअल बनेंगे, एक्चुअली दो इंडिविजुअल नहीं है, सिंगल इंडिविजुअल है। ये सिंगल इंडिविजुअल ऐसे डेवलप होता है कि वो कॉन्जॉइंट ट्विंस रहेंगे। ओके, कॉन्जॉइंट ट्विंस, या तो इनके हेड जॉइंट रहेंगे या तो फिर ये दो बॉडी वाले होंगे और सिंगल हेडेड होंगे, राइट। ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, right? So I understood, I hope student you understood that the concept of the twins very well. Okay, if you have any doubt in this you can drop me a message. Let's begin for the next topic. And in this case you have to remember that the sperm type of the sperms determines the sex of that individual. मतलब मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फादर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि फीमेल में तो एक ही सिचुएशन है, एक्स एंड एक्स। ओके, डिपेंड किसके ऊपर करता है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा? इट डिपेंड्स ऑन द स्पर्म्स, विच टाइप ऑफ द स्पर्म इज गेटिंग fertilized. Okay, any more doubt children? For example, if the normal eukaryotic cell is there, okay, normal eukaryotic cell, or we can say our body cell, somatic cell, body cell, it means it is not reproductive cell। मतलब एग नहीं है, स्पर्म नहीं है, ये दोनों को छोड़ के जो बॉडी के बाकी के सेल्स है दे आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। इनमें क्रोमोसोम्स हमेशा कैसे होते? पेयर्स में। ओके, क्रोमोसोम कैसे होंगे? हमेशा पेयर। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड 2n। 2n मतलब डिप्लॉयड। ओके, मतलब डिप्लॉयड, डाई मीन्स 2। ओके, द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। और जो एग सेल होता है, एग सेल या फिर स्पर्म्स, ओके, उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं ओनली n। मतलब क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं है, पेयर्स में नहीं, ओनली वन सेट, ओनली 23 क्रोमोसोम्स। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड, मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब 23 पेयर्स नहीं रहेंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि फ्यूचर में ये फ्यूज होने वाले हैं और तब जाके ये पेयर्स बनने वाले हैं। इसीलिए ये सिग्निफिकेंस है हैप्लॉइडी होने का। ओके, मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब कैसे होता है बेसिकली, थोड़ा आपके एनसीईआरटी के बुक में जो दिया है वो मैं आपको बताऊंगी। वहां पर लिखा हुआ है कि पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो आफ्टर देयर चाइल्ड्स मैरिज दे प्रेशराइज देम फॉर हैविंग द चाइल्ड्स। जैसे कि घर में कुछ बुजुर्ग वगैरह होते हैं, राइट, तो ये क्या करते हैं, उनके घर में जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको ये फोर्स करते हैं फॉर हैविंग द चाइल्ड्स। अब अगर ये कपल अगर वेल सेटल नहीं है, राइट, अब वेल सेटल मतलब क्या? विद गुड एजुकेशन उनके पास होना चाहिए, राइट, या फिर सारी चीजें होनी चाहिए कि वो अपने मतलब चाइल्ड को प्रॉपर उसको अडेप्ट कर सकते हैं, राइट, उसको मतलब सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये मतलब वेल सेट नहीं है, उनके पास मतलब पैसा नहीं है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो बच्चे को मतलब प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में
अगर आफ्टर मैरिज इफ द कपल वांट्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड्स है, हम ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फैमिली से प्रेशर होता है कि चाइल्ड्स होने चाहिए बराबर, अब मैरिज हो गया, ठीक है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तो बच्चे होने चाहिए, बट अगर वो कपल सेट नहीं है तो वो कपल नहीं चाहेगा कि उनको बच्चे हो, राइट? सो हाउ कैन प्रिवेंट दिस अनवांटेड प्रेगनेंसी? तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का जो मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। Look at the word carefully. Contraception. Contraception means the process of prevention of unwanted pregnancy in a woman. Right? Definition याद रखो. The process of prevention of unwanted pregnancy in women is called contraception. अब क्या ये ऐसा है क्या कि उस वुमन ने सोच लिया और हो गया कि नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, तो उसने सोच लिया और हो गया? नहीं, इसके लिए कुछ मेथड्स है, कुछ डिवाइसेस है, वो यूज करने पड़ते हैं, एंड दिस डिवाइसेस आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स? These are the devices or the medicines can help to prevent unwanted pregnancy in a woman. So let's discuss what these methods are. So basically, there are 4 methods, right? And what these methods are, the first is physical barrier method. Physical barriers, or which is also called as the mechanical barrier method. मतलब जिसमें क्या होगा कि मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी में कुछ बैरियर्स क्रिएट किए जाएंगे, and due to these barriers there will be no transfer of the sperms from the male body to the female body. For example, use of the condoms by male. Male क्या यूज करते हैं? condoms, ठीक है? They cover this condoms over the penis during the sexual intercourse, and these condoms then prevent the entry of the sperms into the female vagina. So if the sperms not enter into the female vaginal passage, so of course there will be no fusion in between the male germ cell and female germ cell, right? So वहाँ पे sperms की जो entry है वो prevent की जाती है due to use of this device, and which is especially used by the males only. Okay, male use कर सकते हैं। फिर ऐसे females के लिए भी कुछ devices है क्या? So yes, there are the devices and they are called vaginal caps. Okay, they are called vaginal caps. So ये vaginal caps मतलब female use कर सकते हैं during the intercourse. मतलब intercourse का मतलब मैंने आपको बताया था process of copulation. Okay, that is insertion of male penis into the female vagina. So due to which the sperms enters into the female vaginal passage. Okay, so the female can use this devices which is called diaphragm also. इसको diaphragm भी बोलते हैं. Spelling mistake is there. PH, diaphragm. Okay, so this device is called diaphragm, or which is also called as vaginal caps. So that female can use during the process of sexual intercourse, and hence there will be no entry of the sperms into the female vagina. So इस method को हम क्या बोलते हैं? Barrier method भी बोलते हैं simply, मतलब it creates the barriers. Okay, या फिर इसको हम mechanical barrier method बोल सकते हैं, या फिर इसको physical barrier method भी बोला जाता है। तो दोनों यूज कर सकते हैं, मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। आइदर, दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है, आइदर मेल कैन यूज और फीमेल कैन यूज फॉर दिस। नेक्स्ट आता है, अगर ये मैकेनिकल बैरियर्स यूज नहीं करने हैं कपल में से किसी को भी, तो व्हाट दे कैन डू? सो फीमेल कैन टेक द मेडिसिन्स। ओके, ये मेडिसिन्स जो है ये आते हैं आपके केमिकल मेथड में। सो द सेकंड मेथड इज द केमिकल मेथड, where female can take medicine till the time that she doesn't want to be pregnant, right? So मतलब जैसे कि अभी मैरिज हो गया, so मैरिज होने के बाद अगर वो फीमेल चाहती है कि मुझे अभी और 4 साल तक मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए,
सो इस टाइप के टैबलेट्स आते हैं कि ये पिल्स मतलब टैबलेट्स, सो शी कैन टेक 1 टैबलेट एवरी डे। ओके, कब तक? जब तक उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक वो ले सकती है, बट इसके लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स है। इससे ओबेसिटी होती है, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो लॉट ऑफ बॉडी के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स है। सो बेसिकली ये इस टाइप के जो मेडिसिन है, जो टैबलेट्स है, जैसे कि मालाडी नाम का एक टैबलेट है, बहुत पुराना है, फीमेल यूज करते थे, बट इसके लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। तो इस टाइप के टैबलेट्स एक्चुअली फीमेल ने प्रिवेंट करने चाहिए, बिकॉज उसके लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस है। फिर ऐसे भी कुछ पिल्स आते हैं, ऐसे भी कुछ मेडिसिन आते हैं जो फीमेल ले सकती है आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर 72 आवर्स, जिसका नाम है आई पिल नाम की एक टैबलेट आती है, वो फीमेल यूज कर सकती है आफ्टर हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब जब उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया कपल में, और कपल को पता चला कि उन्होंने मतलब ये भी डिवाइस नहीं यूज किया और ये भी डिवाइस नहीं यूज किया, और प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, लेकिन स्पर्म्स की भी एंट्री हो गई मतलब वजाइना में, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे कुछ टैबलेट्स आते हैं दैट फीमेल कैन टेक बिफोर 72 आवर्स। ओके, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बिफोर 72 आवर्स, जिससे मेल और फीमेल जर्म सेल में जो फर्टिलाइजेशन हो सकता है दैट कैन बी प्रिवेंटेड, और अगर हो भी गया सो दैट कैन किल दिस एग सेल, फर्टिलाइज्ड एग। ओके, सो ऐसे भी कुछ मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन ऐसे है that forms the protective covering around the egg cell, and hence this protective covering sperms cannot penetrate, जिससे sperms मतलब अंदर चला भी गया तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो एग के ऊपर हो चुका है ड्यू टू यूज ऑफ द मेडिसिन, इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। सो ऑफ कोर्स वहां पे जाइगोट फॉर्म नहीं होगा और वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट? सो दिस बिलोंग्स टू द केमिकल मेथड। और दूसरा केमिकल में आता है स्पर्मिसाइड मेडिसिन। स्पर्मिसाइड्स, स्पर्मिसाइड्स का मतलब क्या है? स्पर्म मतलब स्पर्म, साइड्स मतलब किल, ये स्पर्म्स को किल कर देता है। तो ये मेडिसिन कहाँ पे यूज की जाती है? इन द वजाइनल पैसेज, मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो इमीडिएटली ये मेडिसिन जो स्पर्मिसाइड दैट कैन बी इंसर्ट इनटू द फीमेल वजाइना, एंड दैट मेडिसिन कैन किल द स्पर्म्स। ओके, इस टाइप के भी मेडिसिन होते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, इसमें क्या किया जाता है? ध्यान दो अच्छे से, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बराबर? तो इसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है इनको कट दिया जाता है, इनको कट किया जाता है, मतलब ये ओवरी यहाँ से, बराबर? तो फैलोपियन ट्यूब को स्मॉल कट दिया जाता है। कट देने के बाद उसके एंड्स रिजॉइन किए जाते हैं, एंड एंड्स आर सील्ड। कट करो और ये क्लोज कर दो, ये वाला पार्ट ऐसे क्लोज कर दो और इनको पैक कर दो, जिससे क्या होगा? एग यहाँ से तो आएगा बट यहीं पे अटक जाएगा, और स्पर्म्स यहाँ से आएंगे इधर ही अटक जाएंगे। देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द एग एंड स्पर्म्स। सो ये बोथ साइड करना पड़ेगा, एक साइड करके काम नहीं चलेगा, ये दोनों साइड करना पड़ेगा, राइट? एंड दिस मेथड इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। Tubectomy means the female oviducts from both the sides are cut and they are resealed. They are sealed again. So due to which the egg will not come in the fallopian tube, and of course the sperm cannot reach the egg cell. So there will be no fertilization between egg and sperm. ऐसे टाइम पे अगर सर्जिकल मेथड की गई है तो इस टाइम पे ये मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये मेथड कब किया जाता है? बेसिकली आफ्टर हैविंग द चाइल्ड, जब परमानेंटली मतलब उनको मतलब एक दो बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए, अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, उस टाइम पे सर्जिकल मेथड को यूज किया जाता है, बराबर? फोर्थ मेथड है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको बोलते हैं IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें आता है कॉपर का टी शेप रॉड। कॉपर का टी शेप रॉड ये फीमेल यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, सर्जिकली डॉक्टर करते हैं, जिससे एक वहां पे मतलब फर्टिलाइज्ड हो भी जाता है, बट वहां पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। इट क्रिएट्स द ऑब्स्ट्रैकल्स फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड देयर विल बी ऑफ कोर्स नो चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट?
So this various method couple can use in order to prevent the unwanted pregnancy. अब सर्जिकल मेथड जो होती है उसमें और एक मेथड है जिसमें मेल की जो स्पर्म डक्ट है वो भी कट कर सकते हैं. स्पर्म डक्ट कैन बी कट, मतलब वास्ट डिफरेंस कैन बी कट. तो स्पर्म्स यहाँ से आगे नहीं पास हो सकते हैं, बराबर. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड वैसेक्टोमी. Vasectomy. In this surgical method, the vast difference from the male reproductive system is cut and its ends are joined again. So sperms will not enter into the urethra, okay, and hence there will be no chances of the pregnancy. And this also male can do after having the child. So couple में या तो female कर सकती है ट्यूबेक्टोमी, या तो फिर मेल नहीं करना चाहिए वैसेक्टोमी. दोनों को करने की जरूरत नहीं है. आइदर फीमेल कैन डू सर्जिकल मेथड और मेल कैन डू. इट डिपेंड करता है कपल में कि किसको करना है. वो आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर यू गो फॉर द सर्जिकल मेथड और the male will go for the surgical method. Okay, so in this way this various method can be used in order to prevent the unwanted pregnancy. Okay, if you have any doubt children, now you can ask me.